गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्ट। जजेस 3.2.15। एक मिनट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। चलो जी पढ़ो। जी, जो आपने पढ़ा इसका मतलब बता दीजिए। आ, किसका? ये जो अभी आपने संस्कृत में पढ़ा है। ये संस्कृत में पढ़ा है, ये मैंने काफी बताया कि ना भाई, ये इसका मतलब है by regularly attendance in class on Bhagavatam हम्म by rendering service to the pure devotee। एक्चुअली यहाँ पर ना ये इन्होंने क्लास का इसलिए बताया प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में हम्म कि क्योंकि ये ही वांटेड टू एस्टेब्लिश ये, बट जो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उस हम्म ये है कि भागवतम दो टाइप की होती है, दो दो है, दो तरह के। एक तो ये बुक भागवतम है और हम्म दूसरा है डिवोटी भागवतम। तो हम्म इस तरह से पढ़ना चाहिए, बाई रेंडरिंग रेगुलर regular service to the book Bhagavatam and pure devotee. All that is troublesome is to the heart is almost completely destroyed. अच्छा। ओके। नष्ट प्रायेषु, देखो लिखा ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जो जो हम्म जो 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 क्या नाम है, अभद्र है, नित्य हम्म भागवत सेवा करने से वो हम्म खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। by regularly क्या नाम है, doing service to the book Bhagavatam and pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, loving service to the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact। भगवती उत्तम श्लोक है, और ये उत्तम श्लोक है, ये मतलब भगवान का ही नाम है। उनकी हम्म उनकी उनकी प्रेयर करने से जो भक्ति है वो हृदय में परमानेंटली इररिवोकेबल बैठ जाती है। अच्छा। हम्म, ओके। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। वन हम्म पॉइंट पॉइंट वन एट मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। जी 1 पॉइंट। 2.18 मैं भेज भी दूंगा, लिंक है। जी जी। 1.2.18। ठीक है। अच्छा जी। अब क्या नाम है, कौन सा है टेक्स्ट? 3.2.15। 15 क्यों, मैं पढ़ रहा था सुबह या कौन पढ़ा? चलो तुम जैसा पढ़ो। आप लीजिए। हाँ, पढ़ो पढ़ो। 15 पढ़ना है ना? जी। पढ़ो। पढ़ेंगे। ओके। हम्म, जी। श्वशांत श्वशांत रूपेश रूपेश विरतरय स्वरूपै स्वरूपैरभ्य रभ्यर ध मानेश वनुक वनुक वनु कंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो ह्यो अजो अपि जातो भगवान यथाग्नि। स्वशांत रूपेश्वत श्वितरे स्वरूपैरभ्यद्रमानेष्वनुकंपितात्मा परा परावरेशो महदंश युक्तो जो पी जातो भगवान यथाग्नि। जी। The personality of Godhead, the all compassionate controller
of both the spiritual and the material creation is unborn. But when there is friction between his peaceful devotees and the person who are in the material modes of nature, he takes birth just like fire, accompanied by Mahatattva. Ah, जी. The devotees of the Lord are by nature peaceful because they have no material hankering. A liberated soul has no hankering and therefore he has no lamentation. One who wants to possess also laments when he loses his position. Devotees have no hankering for material possessions and no hankering for spiritual salvation. They are situated in the transcendental loving service of the Lord as a matter of duty, and they do not mind whether they are or how they have to act. Karmis, Gyanis, and Yogis all hanker to possess some material or spiritual assets. Karmis want material possession, Gyanis and Yogis want spiritual possession, but devotees do not want any material or spiritual assets. They want only to serve the Lord anywhere in the material or spiritual worlds that the Lord desires. And the Lord is always specifically compassionate towards such devotees. The karmis, jnanis, and yogis have their particular mentalities in the modes of nature, and therefore they are called uh, itar or non-devotees. Acha. These itaras, including even the yogis, sometimes harass the devotee of the Lord. Durvasa Muni, a great yogi, harassed Maharaja uh, Amrisa because the latter was a great devotee of the Lord and the great Karmi and Jnani Hiryakrishna, Hiryakashipu even harassed his own Vaishnava son प्रहलाद महाराज. अच्छा दिया इसमें हिरण्यकश्यप के लिए बताया गया कि कर्मी एंड ज्ञानी. हाँ भाई, उसने बहुत बड़ी तपस्या भी करी थी ना उनके लिए। अच्छा. हाँ, ब्रह्मा There जी। are, okay. There are many instances of such harassment of the peaceful devotee of the Lord by the Ithras. When such friction takes place, the Lord, when such friction takes place, the Lord, out of his great compassionate towards his pure devotees, appears in person, accompanied by his plenary portion, controlling the Mahatattva. Okay. ये जिया जी मुझे आज नई बात पता चली कि जिन्होंने कहा कि कर्मी ज्ञानी योगी ये भी जो है वो भक्त को मतलब किसी भी तरह से परेशान करते से दुर्वासा का दिया. अच्छा, ये एक नया अभी फैक्ट. इन्हीं ज्ञानीज और योगीज जो है ना, मतलब उनको कुछ ना कुछ चाहिए। जी. दे वांट समथिंग, क्या नाम है, हाँ. हम्म. फॉर, मतलब फॉर डूइंग वॉट एवर सर्विस दे आर डूइंग टू द हम्म. लॉर्ड। तो इस हम्म. प्रोसेस में नेचुरली दे विल हैव, मतलब उनको कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप की ईर्ष्या हो ही जाती होगी डिवोटीज। जी. The Lord is everywhere in both the material and the spiritual domain, and He appears for the sake of His devotees, where there is friction between His devotee and non-devotees. As electricity is generated by friction of matter anywhere and everywhere, the Lord, being all-pervading, appears because of friction of devotees and non-devotees. When Lord Krishna appears on a mission, all His plenary portion accompany Him. When He appeared as the son of Vasudeva, there were differences of opinion about his incarnation. Some said he is the supreme personality of Godhead, some said he is an incarnation of Narayan, and others said he is the incarnation of uh, क्षीरोदक्षाई विष्णु। Kirodakshai Vishnu. But actually, he is the origin supreme personality of Godhead. Krishna tu Bhagwan Swayam and Narayan, the Purush, and all other incarnations accompany him to function as different parts of his pastime. Mahad Amsa Yukta indicates that he is accompanied by the Purushas who create the Mahatattva. It is confirmed in the Vedic hymns uh, Mahantam Vibhum Atmanam. Sure. Lord Krishna appeared just like electricity when there was friction between Kans and Vasudeva and Ugrasen.
Vasudev and Ugrasen were the Lord's devotee. So Vasudev and Ugrasen were Lord's devotee, and Kans, a representative of Karmis and Gyanini, was a non-devotee. Krishna, as he is compared to the sun, he first appeared from the ocean of womb of Devaki, and gradually he satisfied the inhabitants of the place surrounding Mathura, just as the sun enlivens the lotus flower in the morning. After gradually rising to the meridian of Dwarka, the Lord set like the sun, placing everything in darkness as described by Uddhav. Hmm. 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 तो जेडी इसमें ये जो मेन चीज बताई गई है उसमें इन्होंने ये बताया कि जो बहुत से जो ज्ञानीज होते हैं, कर्मी ज्ञानी और योगी, इनको फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो केवल भगवान की सेवा में लगे होते हैं। और इसीलिए उनमें दोनों में, हाँ ठीक है, इन फ्रिक्शन। दोनों में मतलब ये अंतर बताया कि चाहे ये जी कर्मी ज्ञानी और जो बहुत ज्यादा योगी होते हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए जरूर होता है, हम्म। और भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता है। हम्म। ये चीज बताई है मैंने। ओके। क्या नाम है, जब उनमें दोनों में फ्रिक्शन होता है तो भगवान फिर आते हैं, क्या नाम है, जी, टू सॉर्ट इट आउट। अपने भक्तों का हम्म। के लिए। हम्म। जी। हम्म। माँ, अ, हाँ, माम खेद यत्ते तद जस्य जन्म विडंबनम यदु सुदेवगेहे वज्रे च वासो रि वासो रिभ यादव स्वयं पुराद विवाद सीध्यद नंत वीर्यः। माम खेदयत्य येत यत्य एतस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासोरिभेयादिव स्वयं पुराद व्यवासी दनंत वीर्य। जी। When I think of Lord Krishna, how he was born in the prison house of Vasudev, although he is unborn, how he went away from his father's protection to Brij and lived there in incognito out of fear of the enemy, and how, although unlimitedly powerful, he fled from Mathura in fear. All these bewildering incidents gave me distress. Because of because Lord Shri Krishna is the original person from whom everything and everyone has emanated. Aham sarvasva prabhavam prabhavta, नहीं नहीं, सर्वस्व प्रभव। प्रभवा, एक मिनट, अहम सर्वस्व प्रभवा, भगवद गीता 10.8, जन्मादि अस्य यतः वेदांत सूत्र 1.1.2, nothing can be equal to or greater than him. The Lord is supremely perfect, and whenever he enacts his transcendental pastime as his son, a rival or an object of enmity, he plays the part so perfectly that even pure devotees like Uddhav are bewildered. For example, Uddhav knew perfectly well that Lord Sri Krishna is eternally existent and can neither die nor disappear for good. Yet he lamented for Lord Krishna. All these events are perfect arrangement to give perfection to his supreme glories. It is for enjoyment's sake. When a father plays with his little son and the father lies down on the floor as if defeated by the son, it is just to give the little son pleasure and nothing more. Because the Lord is all powerful, it is possible for him to adjust opposites such as birth and no birth, power and defeat, fear and fearlessness. A pure devotee knows very well how it is possible for the Lord to adjust opposite things, but he laments for the non-devotee who, not knowing the supreme glories of the Lord, think of him as imaginary simply because there are so many apparently contradictory statements in the scriptures. Factually, there is nothing contradictory. Everything is possible when we understand the Lord as the Lord and not
as one of us with all our imperfections. हम्म हम्म Hmm. Hmm. हम्म जी। लेकिन जिया जी, ये जो इन्होंने कहा है हम्म कि लॉर्ड को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति न समझे, हम्म और तो जिया जी वो लेवल कैसे समझ में आएगा गॉड का? मतलब एक्चुअल में लाइफ में, मतलब जो हमारी समझ है उसमें जो इन्होंने कहा है कि एक्चुअल में इतना विश्वास कैसे आएगा? यही क्या नाम है, डिवोशनल सर्विस करते करते आएगा। हम्म। मतलब अच्छा। ये दिस इज नॉट क्या नाम है, मतलब ये साधना भक्ति जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। हम्म। मतलब चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, भगवत गीता भागवतम, हम्म। टू द टेम्पल, जी। क्या नाम है, लाइक दैट। या मतलब जी। यू सी इट इज, मेरे को नहीं लगता कि ये इतना कोई भगवान को समझने की चीज है, बिकॉज हम्म। समझना मतलब वी जस्ट क्या नाम है, मतलब ही इज द, मानने की चीज है ना जी। हाँ ये ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो उन्होंने उसमें भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः स्मत् मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जब वो कह रहे हैं कर्म है, और आप उनको क्योंकि बिना ये चीज माने हुए ना, फिर जी। पढ़ने में कोई खास वो नहीं है, बिकॉज देन यू विल ऑलवेज हैव द लिंगरिंग डाउट। तब तो हर चीज फिर आप मटेरियल माइंड से उसको देखने लगेंगे ना फिर, कि ये हम्म। कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है ना, ये हम्म। कर दिया। ऐसा हम्म। नहीं है, मतलब जो 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 रियलाइज सोल है वो थोड़ा हम्म। समझ भी सकते हैं। मतलब भगवान हम्म। को समझने का काम इतना आसान नहीं है, मतलब आसान क्या, कोई समझ ही नहीं पाता, ब्रह्मा नहीं समझ पाते तो हम कहाँ से समझ जाएंगे। जी। लेकिन जिया जी, हम्म एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ, आप ये बताइएगा कि क्या ये तथ्यपूर्ण है, क्या ऐसा होता है? जैसे मतलब मैं ये भक्ति के ही रेफरेंस में समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार एक लड़का था 18-20 ईयर्स का, और उसकी जो लैंडलॉर्ड थी वो 70 ईयर्स की लेडी थी। हम्म लेकिन हम्म वो जो लेडी थी वो बहुत ग्रीडी थी, उसके पास बहुत पैसा था, और उसके परिवार में कोई और था भी नहीं। बस हम्म उसका एक बहुत बड़ा मकान था जिसमें वो डिफरेंट किराएदारों को रखती थी, उनसे पैसा लेती थी। लेकिन वो बहुत क्रूएल लेडी थी। तो ये जो लड़का था, ये हमेशा देखता रहता था कि इस लेडी के पास जब और कोई भी आता है जो थोड़ा सा किसी भी तरह के क्राइसिस में है, और इससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैडम बस 2-3 महीने हम और रह ले फिर किराया दे देंगे, तो वो बिल्कुल भी उन लोग को बख्शती नहीं थी और बहुत परेशान करती थी। तो ये और ये उस बंदे ने लगभग 2-3 साल तक देखा। तो जब वो किसी को भी देखता था कि ये लेडी उसको परेशान कर रही है, तो इसको बहुत बुरा लगता था कि बताओ, इसके आगे कुछ है भी नहीं, इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर किसी बंदे का 4-5 हजार छोड़ देगी तो इसका क्या चला जाएगा? हम्म तो इस तरीके जी उसने 3-4 साल देखा, जबकि उस बच्चे को कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मतलब इतना था कि वो अपना किराया वगैरह दे देता था। हम्म लेकिन ये एक बार ये इस तरह के विचार उसके दिमाग में 3-4 साल तक चलते रहे। तो एक बार क्या हुआ रिया जी कि उसको जो है वो कोई एग्जाम देना था, उसको लिए कुछ पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ी, और जो उसके घर से पैसे आते थे वो थोड़े कम पड़ गए। तो उस लेडी के पास गया और उसने उससे कहा कि मुझे जो है इतने पैसे की जरूरत है, और आप जो है इतना मेरे घर से आ गया, इतना कम पड़ रहा है, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि इसके एवरेज में तुम क्या रखवाओगे? तो उसने अपनी घड़ी उनको दी कि आप हम्म ये घड़ी रख लीजिए और इतने पैसे मुझे दे दीजिए। हम्म तो ये जी क्या हुआ कि आ, हाँ जी, जिसमें एक चीज मैं और बताना भूल गई कि जब वो ये किसी को बहुत ज्यादा परेशान करती थी तो उस बच्चे के मन में ये आता था कि कोई इस बूढ़ी औरत को मार क्यों नहीं देता है, ये इतनी क्रूएल है और इतनी दुष्ट है, इतना लोगों को परेशान करती है, ये भी वो सोचता रहता था। तो हम्म ये जी 4-5 साल बाद वो गया, उसको जरूरत पड़ी, तो उसने जब उस लेडी से कहा कि मुझे कुछ पैसे कम है, आप दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने वापस कर दूंगा। तो उसने कहा कि इसके एवरेज में तुम क्या रखवाओगे? तो उसने कहा कि आप ये घड़ी ले लीजिए मेरी, ये बहुत कीमती है।
तो उस लेडी ने घड़ी को खिड़की के पास जाके एनालाइज करने लगी कि ये है भी इतने पैसे की वैल्यू की। तो जिया जी इस उसमें इस लेडी ने ये कहा कि क्या, नहीं नहीं, हम इस घड़ी के एवरेज में तुमको इतना पैसा नहीं देंगे। उस लड़के ने जिया जी उस औरत का गला दबा दिया हम्म। है। फिर वो हम्म। औरत मर गई। तो वो हम्म। लड़का ये कहने लगा, जब वो औरत का बहुत तेज से गला दबाया और वो औरत मर गई, तो वो लड़का एकदम से घबरा गया। ये करने के बाद हम्म। उसने कहा कि अरे यार, मैंने ये मार कैसे दिया, मैं ये मार ही नहीं सकता हूँ। तो यदि उस कहानी में ये था कि जो आप बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं मन के अंदर ही अंदर, वो एक दिन अचानक परिणत हो जाता है जिस पर आप भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। यार ये पता नहीं भाई, ये आई थिंक ना मैं। यही चलती, इसको हम किस रेफरेंस में हम आपसे पूछ रहे हैं। हम्म। जैसे ये तो नेगेटिव रेफरेंस में स्टोरी थी, इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव रेफरेंस में धीरे 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 भक्ति की चीजों को बढ़ाएं, तो क्या वो भी ऐसे परिणत हो जाएंगी। मैं नहीं, ये तो इस बोलना चाहूँ। कहानी के रेफरेंस में तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, ना जी निगेटिव जी। ना पॉजिटिव सेंस में। हाँ हाँ हाँ। What we are ओके doing is we should do it with a purity and can we ओके। do it on the God, because हम्म। वो ये तो बिल्कुल ही कर्म है, इस कहानी के सेंस में सोचना तो बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा, बल्कि वो निगेटिव हाँ। ज्यादा है ना जय जी। नहीं, निगेटिव ही है, मतलब इट विल क्रिएट ए नेगेटिव वाइब्स ओनली, इवन इफ यू थिंक इट पॉजिटिवली। ओके। Yeah, yeah, naturally, when you are doing Karama, such a important Karama job of doing हम्म devotional service, how can you हम्म। even keep this in your at the back of your mind? No. अच्छा जी। चलिए नेक्स्ट जय जी पढ़ते हैं। दुनोति चेता स्मृतो ममैतद यदाह पदा पदाव भी वद्य पित्रोः तात्माब तात्माम्ब कंसा दुर्षणि कतानाम प्रसीदतम नो कृत निष्कृतीनाम। दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद यदा पादाव भिवन्द्य पित्रो ताताम कंसादुरश शातानाम प्रसीदितम नोकृत निष्कृति कृतीनाम। Lord Krishna begged pardon from his parents for their Krishna and Balram's inability to serve their feet due to being away from home because of great fear of Kans. He said, "O mother, O father, please excuse us for this inability. All this behavior of the Lord gives me pain at heart." ये जी इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, जो इन्होंने ये वहां कहा है पर कि। तो मैं जो 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 ये जो मतलब लॉर्ड कृष्णा जो है, ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ा इन्हें कंस के हम्म, वहां पे मथुरा में। तो हम्म, अब वो उनकी सेवा करने से अब वंचित हो गए ना, तो वो हम्म। अपने पेरेंट्स से क्या नाम है वो माफी मांग रहे हैं कि हम जो है आपकी क्या नाम है, हमें क्षमा कर दीजिए कि हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो ऑल दिस बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड गिव्स मी पेन एट हार्ट। अच्छा, ये उद्धव जी कह रहे हैं ना जी। हैं? ये उद्धव जी कह रहे हैं नहीं नहीं कि नहीं, और, नहीं ये ये सेंटेंस उद्धव और। जी बता रहे हैं क्या नाम है इनको, विदुर को, कि लॉर्ड कृष्णा के बारे में, मतलब लॉर्ड कृष्णा की हाँ कथा जो है, मतलब जी। लॉर्ड कृष्णा की ये चीज बता रहे हैं विदुर को, कि लॉर्ड हाँ कृष्णा बेग्ड पार्डन फ्रॉम हिज पेरेंट्स जी। फॉर देयर कृष्णा, फॉर देयर मतलब वही दोनों जने की इनेबिलिटी हम्म टू सर्व देयर फीट ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ ग्रेट फियर ऑफ कंस। मतलब कंस हम्म से बचने के लिए क्या नाम है वो हम्म, लोग नहीं उनकी, जी। क्योंकि वासुदेव और देवकी से तो ये दूर चले ही गए थे ना। वो तो रिक्वेस्ट है जी। It appears that Lord Krishna and Baldev were both very greatly afraid of Kans, and therefore they had to hide themselves. But if Lord Krishna and Baldev are the supreme personality of Godhead, how was it possible that they were afraid of Kans? Is there any contradiction in such a statement? Vasudev ji, Vasudev, due to his great appreciation for Krishna, wanted to give him protection. He never thought that Krishna was the Supreme Lord and could protect himself. He thought of Krishna as his son because
Vasudev was a great devotee of the Lord. He did not like to think that Krishna might be killed like his other children. Morally, Vasudev was bound to deliver Krishna to the hands of Kans because he had promised to turn over all his children. But out of his great love for Krishna, he broke his promise, and the Lord was very pleased with Vasudev for his transcendental mentality. He did not want to disturb the intense affection of Vasudev, and thus he agreed to be carried by his father to the house of Nand and Yashoda. And just to test the intense love of Vasudev, Lord Krishna fell down in the water of Yamuna while his father was crossing the river. Vasudev became mad after his child as he tried to recover him in the midst of the rising river. ये इंसिडेंट भी अपने आप में हाँ, यही बता रहे हैं क्रम है, भगवान उनको अलाउ कर रहे हैं क्रम की, क्योंकि वो तो उनको अपना बच्चा ही मानते थे। जी अब जी वो चूंकि क्रम उनका इंटेंस लव फॉर लॉर्ड कृष्णा कहीं मार ही ना दे कंस इनको, तो वो ले जाने हम्म, लगे, मतलब ले गए क्रम, यमुना क्रॉस करने के टाइम पे वो गिर गए। तो जी मतलब ये मतलब ये वाला जो लव है ना, जी ये जहां पर की, मतलब यू डोंट थिंक दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट हम्म, जस्ट जी योर सन चाइल्ड। हाँ। जी These are all glorified pastime of the Lord, and there is no contradiction in such manifestations. Since Krishna is the supreme Lord, he was never afraid of Kans, but to please his father, he agreed to be so. And the most brilliant part of his supreme character was that he begged pardon from his parents for being unable to serve their feet while absent from the home because of fear of Kans. The Lord, whose lotus feet are worshipped by demigods like Brahm and Shiva, wanted to worship the feet of Vasudev. Such instruction by the Lord to the world is quite appropriate. Even if one is the Supreme Lord, one must serve his parents. A son is indebted to his parents in so many ways, and it is the duty of the son to serve his parents, however great the son may be. Indirectly, Krishna wanted to teach the atheists who do not accept the supreme fatherhood of God, and they may learn from this action how much the Supreme Father has to be respected. Uddhav was simply struck with wonder by such glorious behavior of the Lord, and he was very sorry that he was unable to go with him. हम्म। Hmm. यहाँ पर क्रम है, वो तो बताया उन्होंने कि जी भगवान के बिहेवियर में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ऑल्दो ही कुड हैव किल्ड कंसा जस्ट लाइक दैट, जी बट उन्होंने ही प्लेड द रोल ऑफ ए मतलब अनप्रोटेक्टेड सन, मतलब हम्म वल्नरेबल सन। हम्म ठीक है ना, मैं तो वो उन्होंने कहा। और नॉट ओनली दैट, ही बेग्ड हिम फॉरगिवनेस, क्योंकि हम आपके, हालांकि वासुदेव जी ही उनको लेकर के गए एक सेफ प्लेस पे, बट हम्म जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आपकी सेवा कर पाए बचपन में, है हम्म, ना। जी जी वासुदेव को, नॉट नंद महाराज, नंद महाराज के साथ तो रहे ही थे वो। जी तो मैं पढ़ता हूँ, हाँ, जी टेक्स्ट 18। वो हाँ वो हाँ मुष्यागि सरोजेणु जरेणु विस्मृत मीशीत पुमान विजिग्रहन, यो विस्फुट यो विस्फुर द भ्री भ्रु विट पेन भूमे भारम कृतांतेन तिरश्चकार। हम्म अ, को वा अमिष्यार गृह सरोज रेणुम विस्म विस्मर्तुम मीशीत पुमान विजिघ्रन यो विस्फुर दभ्रु विटपेन भूमे भरी कृतांतेन तिरश्च चकार जी Who, after smelling the dust of his lotus feet even once, could even forget it simply by expanding the leaves of his eyebrows? Krishna has given the death blow to those who are burdening the earth। हम्म उनकी ग्लोरीज के बारे में। तो ये थोड़ा हम और पढ़ लेंगे, हम समझ नहीं पाए। Who, हम्म, after smelling the dust of his lotus feet even once, हम्म, could ever forget it, मतलब बस हम्म,
की लोटस फीट को जिस डस्ट ने टच किया है हम्म, हो सकता है। अब ये फिर उसका फर्दर बिल्कुल हम्म, डिफरेंट टाइप का ग्लोरिफिकेशन है, सिंपली बाय एक्सपेंडिंग द लीव्स ऑफ हिज आईब्रोज। हुज आईब्रोज? लॉर्ड हम्म, हम्म, Krishna has given the death blow to those who were burdening the earth। यहाँ पलक झपका करके वो जो है ये राक्षसों का वो खत्म कर देते थे। जी, Lord Krishna cannot be accepted as one of the human beings, even though he played the role of an obedient son. His actions were so extraordinary that by simple raising of his eyebrows, he could death he could deliver death blows to those who were burdening the earth। हम्म, लिटरल ट्रांसलेशन है। यस। हम्म, ये सारी ग्लोरीज जो है ना वो बता रहे हैं ना विदुर। जी, अरे वो बता रहे हैं क्रम उद्धव बुद्ध। उद्धव, और उद्धर उद्धव तो महाभागवत हैं तो फिर बिल्कुल जी, सही। टेक्स्ट 19। दृष्टा भवद्भिर्नु राजसूये चैदस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। दृष्टा भवद भिन्नन राजसूये चैदस्य कृष्णम द्विष द्विषतोऽपि सिद्धिः यहाँ यान योगिनः स स्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्त द्विरहम सहेत। you have personally seen how the king of Chedi, Shishupal, achieved success in yoga practice, although he hated Lord Krishna. Even the actual yogis aspire after such success with great interest by performance of their various practices. Who can tolerate self separation from him? थोड़ा सा ये है इन्वॉल्व चीज है, क्योंकि इसमें उनकी पुरानी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। You have personally seen how the king of Chedi, Shishupal, achieved success in yoga practice, or हम्म, he hated Lord Krishna. हम्म, Actual yogis aspire after such success with great interest by performance of their various practices. Who can tolerate separation from him? ये तो यदि वो लॉर्ड कृष्ण से हेट क्यों करता था? वो पुरानी कहानी है, क्या नाम है, मतलब ही वॉज, उन्होंने कंस को मार दिया था ना। कंस को हाँ, मार, कंस वॉज आई थिंक ही वॉज हिज ब्रदर इन लॉ या समथिंग। कंस की अच्छा, वाइफ जो थी ना शिशुपाल की बहन थी। ओके, हाँ वो उसका उनका रिलेटिव था शिशुपाल का। तो शिशुपाल यूज टू, क्या नाम है, वो तो उनको बहुत घृणा करता था इसी इसी वजह से। अच्छा, Lord Krishna's causeless mercy was exhibited in the great assembly of Maharaja Yudhishthir. He was merciful even to his enemy, the king of Chedi, who always tried to be an envious rival of Lord. Because it is not possible to be a bona fide rival of the Lord, the king of Chedi was extremely malicious towards Lord Krishna. In this, he was like many other asuras, like Kans, such as Kans and Jarasan. In the open assembly of Rajsuya sacrifice performed by Maharaja Yudhishthir, Shushpal insulted Lord Krishna and he was finally killed by the Lord. But it was seen by everyone in the assembly that a light flashed out of the body of the king of Chedi and merged into the body of Lord Krishna. This means that Chedi Raj achieved the salvation of attaining oneness with the Supreme, which is the perfection most desired by Jnanis and Yogis, and for which they execute their different types of transcendental activities। It लेकिन is धीरे धीरे ये चीज समझ में नहीं आई ये कि जो जब वो भगवान से इतनी घृणा करता था, भगवान ने उसको मारा, तो फिर उसकी आत्मा ये जाके। ये जो थोड़ा इन्वॉल्व चीज है, इन्वॉल्व नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। बिकॉज जी, वो परमानेंटली हर टाइम वो भगवान का नाम ही अपने दिमाग में रखता है, चाहे एज एन एनिमी ओनली। अच्छा, हाँ, ओके, दैट इज वाई उसको मतलब उस टाइप का योग योग सिद्धि प्राप्त हो गई। मतलब वो अच्छा, वॉज फुल टाइम थिंकिंग,
उनके हम्म, ही अगेंस्ट में भगवान के नाम, भगवान को बारे में ही सोचता रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो ये भी एक है, लेकिन बट इट इज दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल लाइक अस, या नॉर्मल लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं है। हम्म। यू जी। हैव ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड टू बी हम्म, सर्विंग। हम्म। मतलब ये शिशुपाल वगैरह जो है ना, ये तो अब जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन को भी कोई किसी तरह की मुक्ति मिल गई, या हाँ हाँ। के लोग थे, तो वो एक अलग बात है, वो हमारे लिए नहीं है। या इट तो ये शो कर रहे होंगे कि ईश्वर इतने दयावान है कि जो ईश्वर को नहीं भी लाइक करते हैं वो उनका भी उद्धार करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो हम्म। नहीं जो ये बड़ा एक्सट्रीम केस है। ये अच्छा इसके अंदर में ही ही इज ऑल द टाइम थिंकिंग, सोते अच्छा जागते उठते बैठते। कंस को तो उन्होंने, कंस और भगवान की तो ये एक वो है, उपुलेंस है कि जो उनके हाथ से पर्सनली मारा जाएगा उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। अच्छा। जी। क्या नाम है, ओके। हाँ। It is a fact that a person who are trying to understand the Supreme by their personal endeavors of mutual mental speculation or mystic powers of yoga achieve the same goal as others who are personally killed by the Lord. हम्म Both achieve the salvation of merging into the Brahma Jyoti rays of the transcendental body of the Lord. The Lord was merciful even to his enemy, and the success of the king of Chedi was observed by everyone who was present in the assembly. हम्म Arjuna was also present there, and therefore Uddhav referred the incident to his memory. है ना? हम्म तो हम्म कह रहा है कि बता रहे हैं क्रम, आप उनकी लीला के बारे में बता रहे हैं कि क्रम है वो हम्म जो है शिशुपाल को राजसूय यज्ञ में उन्होंने, एक्चुअली शिशुपाल ने 100 बार गालियां दी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वो उसको हम्म वरदान था। हम्म, तो एक ही बार जब उसने गाली दी तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। ओके। तो ये यहाँ पर क्या नाम है, ये चीज जो है ना, ये एमुलेट करने वाली नहीं है, हम्म। एमुलेट करने वाली नहीं है। हम्म, हाँ। जी। तद तदेव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिराम पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। हम्म। तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्था स्त्रपूतः पद्मा पुरस्य। Certainly, others who were fighters on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrow, and while seeing the lotus-like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. अब देखो ना, वहां पे जो कुरुक्षेत्र में थे, हम्म और तो लॉर्ड ने उनको नहीं मारा, बट चूंकि वो लोग जब वीर गति प्राप्त हुए तो भगवान को देख रहे थे, हम्म तो उनको भी अपनी क्या नाम है, मतलब दे कुड अचीव द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। हम्म The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, appears in the world for two missionary purposes. To deliver the faithful and to annihilate the miscreants. But because the Lord is absolute, ये बड़ा important बात है यहाँ पर, जी। because God is absolute, he is two different kind of actions, although apparently different, are ultimately one and the same. His annihilation of person like Shishupal is as auspicious as his action for the protection of the faithful. हम्म All the warriors who fought against Arjun but who were able to see the lotus like face of the Lord on the battlefront achieved the abode of the Lord exactly as the devotee of the Lord do. The words pleasing to the eyes of the seer are very significant. When the warriors from the other side of the battlefield saw Lord Krishna at the front, they appreciated his beauty and their
dormant instinct of love was awakened. Shishupal saw the Lord also, but he saw him as his enemy, and his love was not awakened. Therefore, Shishupal achieved oneness with the body of merging the impersonal glare of his body called Brahmajyoti. यहाँ पर ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि उन लोगों को तो अबोर्ड मिल गया, बट शिशुपाल वॉज मर्ज्ड इन द ब्रह्म ज्योति और हम्म। ये पर्सनल एफल्जेंस में हम्म। एक नाम है वो थोड़ा डिग्रेडेड चीज है, हाँ हाँ। वो जिन डिग्रेडेड लोगों को बिकॉज जिन लोगों को भगवान से प्यार नहीं होता है वो ब्रह्म, और लेकिन योग वगैरह करते रहते हैं, वो ब्रह्म ज्योत में विलीन हो जाते हैं ना हाँ जी। हाँ, मतलब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर जो बैटल फील्ड में अर्जुन के साथ थे वो तो दे कुड, ऐसा लग रहा है यहाँ पे परपोर्ट में, हम्म। उनको तो लव पैदा हो गया भगवान के लिए हम्म। बिकॉज ऑफ हिज हम्म। beauty, because they could appreciate that. Others who were in the marginal position, being neither friend nor enemies, but slightly in love of Godhead, by appreciating the beauty of his face, were at once promoted to the spiritual planet, the Vaikunt. वो वैकुंठ चले गए है ना. जी। The Lord's personal abode is called Golok Vrindavan, and the abode where his plenary expansions reside are called Vaikuntras. Where the Lord is present as Narayan, love of Godhead is dormant in every living entity. And the entire process of devotional service unto the Lord is meant for awakening the dormant eternal love of Godhead. But there are degrees of such transcendental awakening. Those whose love of God is awakened to the fullest extent go back to Golok Vrindavan planet in the spiritual sky, whereas persons who have just awakened to love of Godhead by accident or association are transferred to Vaikunt Lok planet. Essentially, there is no material difference between Golok and Vaikunt, but in the Vaikunt, the Lord is served in unlimited opulence, whereas Golok, the Lord is served in natural affection. मतलब हम्म। ये एक तरह से कहीं पे भगवान मतलब इन्होंने प्रभुपाद ने एनालॉजी भी दी है, जैसे वैकुंठ में तो वो 4 आर्म्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब हम्म। फॉर्म ऑफ जी। विष्णु कह लो चाहे क्या नाम है नारायण कह लो, है ना, 4 आर्म्ड फॉर्म में. बट गोलोक वृंदावन में तो बिल्कुल जैसे वृंदावन में यहाँ पे उन्होंने लीलाएं की ना उस तरह से रहते हैं बस, हम्म। ऑर्डिनरी मतलब काउहर्ड बॉय की तरह सुरभि हम्म। का वो टेंड करते रहते हैं. तो हम्म। वहां पर जो है ना, वहां पर बहुत ही जो उनके प्रेमा भक्ति में होते हैं ना, मतलब वही लोग वहां पर जी। this love of God is awakened by the association of pure devotees of the Lord. Here the word Parthastra Puta is significant. Those who saw the beautiful face of the Lord on the battlefield of Kurukshetra were purified first by Arjun when he made his onslaught with arrows. The Lord appeared for the mission of diminishing the burden of the world, and Arjun was assisting the Lord by fighting on his behalf. Arjun personally declined to fight, and the whole instruction of Bhagavad Gita was given to Arjun to engage him in the fight. As a pure devotee of the Lord, Arjun agreed to fight in preference to his own decision, and thus Arjun fought to assist the Lord in his mission of diminishing the burden of the Lord. All the activities of pure devotees are executed on the behalf of Lord because a pure devotee of the Lord has nothing to do for his personal interest. मतलब एक तरह से अर्जुन जो मार रहे थे वो उसकी इक्वलेंस वैसा ही था जैसे एज इफ लॉर्ड वाज एनहाइलेटिंग देम. हम्म। As soon as Arjun shot an arrow at an enemy, that enemy became purified of all material contamination, है ना, and became eligible to be transferred to the spiritual sky. Those warriors who appreciated the lotus feet of the Lord and saw his face at the front had their dormant love of God awakened, and thus they were transferred at once to Vaikunt Lake. Look, not to the impersonal state of Brahmajyoti as was Shishupal. हम्म। Shishupal died without appreciating the Lord, while others died with appreciation of the Lord.
both were transferred to the spiritual sky, but those who were awakened to the love of God were transferred to the planets of the transcendental sky. और जो शिशुपाल था वो तो मर्ज हो गया उनकी उनकी हम्म ज्योति में, वो तो हो सकता है कि दोबारा फिर से ही में बी कमिंग डाउन। और वो ब्रह्म ज्योति के बारे में तो और भी बहुत जगह बताया है ना, हम्म काइंड ऑफ ए, मतलब उस वहां पे पर्सनल टच होता ही नहीं है। तो हम्म Uddhav seemingly lamented that his own position was less than that of warriors on the battlefield of Kurukshetra because they had attained to Vaikuntha, whereas he remained to lament the disappearance of the Lord. यहाँ हम्म ये कह रहे हैं कि भाई ये जो उद्धव जी जो है जरा थोड़ा दुख मना रहे हैं, हम्म ये तो रुकना पड़ा है इस दुनिया हम्म में। whereas इवन जो लोग लड़ रहे थे उनके साथ हम्म दुर्योधन की आर्मी में, उन लोगों को भी वैकुंठ मिल गया। हम्म, अब अगला तुम पढ़ो। जी जी। हम्म। स्वयं त्व साम्याति श अ, शय स्त्र धीशः स्वराज्य लक्ष्मी याप्त समस्त कामः बलिम हरदिभिश हर हर दभी दभिश्री चर लोकपालय किरीट कोटि येडि येडित पाद पीठः। स्वयं स्वयं तो साम्य तिष्य य स्त्रयाधीश स्वराज्य लक्ष्म्या त समस्त काम बलिम हरिदिभिश्च लोकपालय किरीट कोटये डिप्पाद तपाद पीठ। Hmm. Lord Sri Krishna is the Lord of all kinds of three and is independently supreme by achievement of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainer of the creation, who offer him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. Purport. Lord Sri Krishna is so mild and merciful as described in the above verses, and yet he is the Lord of all kinds of threes. He is the supreme Lord of the three worlds, the three qualities of material nature, and the three purusas. Uh, Karno Dakshai, गर्भोदक्षाई एंड Garbo Dakshai, and Krishno Dakshai. शिरोदक्षाई, शिरोदक्षाई के साइलेंट, जी जी, थर्ड वाला एक बार फिर से बता दीजिए। शिरोदक्षाई। Shiro शिरो Dakshai. दूध, दूध से होता है क्षीर, क्षीर क्षीर सा, अच्छा, क्षीर सा। ओके। अच्छा, Shirodakshai Vishnu. There are innumerable universes, and each and every universe there are different manifestation of Brahma, Vishnu, and Rudra. Beside that, there is the क्षीर Sisa, Sheesh क्षीर, Murti, who wears all the universe on his hoods, क्षीर, and हाँ। uh, and Lord Krishna is the Lord of all of them. As the incarnation of Manu, he is the original source of all Manus in innumerable universes. Each universe has manifestations of 504,000 Manus. He is the Lord of three principal potency, namely चित Chit सत्ता Shakti, Maya Shakti, Tatastha Shakti. And he is the complete master of 6 points of fortune: wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation. There is none who can excel him in any matter of enjoyment, and certainly there is no one greater than him. No one is equal to or greater than him. It is the duty of everyone, whoever and wherever one may be, to surrender completely unto him. It is not wonderful, therefore, that all the transcendental controllers surrender to him and make all offerings of worship. वो तुम्हारा वो लड़का जो था जो तुमने स्टोरी बताई, यू सी, Hmm. वो जो है ना, वो बड़ा मतलब वो सात्विक गुण में रहने की कोशिश कर रहे थे, कि मैं यार ये तो इसको देना चाहिए पैसे एंड ऑल दैट, है ना। वो अल्टीमेटली तमोगुण में चले गए भाई साहब, और मर्डर कर बैठे। अब उसके ऊपर Hmm. तो पैसे झेल रहे होंगे। तो इट इज Ah, लैक ऑफ नॉलेज एंड डिवोशनल सर्विस विच लेट yes. यू, क्या नाम है, आप, यू हैव
मतलब आप जो है ना वो सात्विक गुण भी एक 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 गलत ही चीज है मेरे हिसाब से। हम्म। है कि जब आपको मतलब हाउ कुड यू कैन मैं डिजेनरेट इनटू दैट, मतलब हम्म। मर्डरर। जी। अब वो इसका मतलब तो ये हो गया कि यू आर ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ मर्डरिंग हर ओनली। बिल्कुल। यू आप तो राक्षसी प्रवृत्ति के शुरू से और ही थे। क्या? यू आर और क्या? काउचिंग विद इन दैट यूजलेस स्टोरी अबाउट हम्म। being a kind of a very benevolent to others and this and that, but you are all बिल्कुल। the time thinking of murdering her only. जी जी, मैंने तो इससे बस केवल इतना कंक्लूजन निकाला कि अपना थॉट प्रोसेस आप सही रखिए। जिस तरह के हाँ मतलब थॉट, इस तरह से हाँ बिल्कुल वो तो है ही है। और थॉट जिस प्रोसेस जो तीनों गुणों से आते हैं ना, वो तो यू बिल्कुल। आर बॉर्न विद दैट। हम्म। इसीलिए अगर आपको जरा सा भी आइडिया लग जाए ये भक्ति का तो उसको ही फॉलो करते रहो। इसके हाँ। बावजूद भी क्रम है ये तीनों गुणों का अंसलाट तो होगा, हम्म। बीच बीच में होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हम्म। कि जब तक ये शरीर लिया है ना, कंडीशन क्रम में बॉडी में है आप, हम्म। उसको उसको तो झेलना ही पड़ेगा, मतलब वो तो जी। दैट बर्डन यू विल हैव टू कैरी टिल डेथ। बिल्कुल। यहाँ सारी सारी क्रम में ये यही है, इसीलिए आपको ये कह रहे हैं कि भाई अंत समय में आपको भगवान को याद करते रहें तो शायद, हम्म। तो मतलब देर इज, और बहुत सारे भगवान ने बहुत सारी गारंटीज दी हुई हैं भगवत जी। गीता। बिल्कुल। विचारों पे जी जी बस अपने ध्यान रखना है कि विचारो, सही रहे। थिंक ओनली ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑल द टाइम, ट्वेंटी जी। फोर बाई सेवन, जी। नोबडी एल्स, नथिंग एल्स। यस। हाँ, तत्तस्य कैड कर मलम घृतानो विगला विगलापयत यड यडग यदुग्रसेनम तिष्ठ तिष्ठन्नि तिष्ठनिश्र परम परमेष्ठि धिषणये न्यबोध यद्देव निधारयेति। ततस्य कैंकण्ड मलम वृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम तिष्ठ निषणम परमेष्ठि धि शणये बोध यदेव निधारयेति। जी। Translation. Therefore, O Vidura, does it not pain us, his servitor, when we remember that he, Lord Krishna, used to stand before King Ugrasen, who was sitting on the royal throne, and used to submit explanation before him, saying, O my Lord, please let it be known to you. जो कुछ भी करके आते थे वो बताते थे उनको, भाई उग्रसेन तो महाराजा उनको बिठाया था उन्होंने ही, बट जी। भगवान गेम प्ले कर रहे हैं ना। हम्म। हाँ। Lord Krishna's gentle behavior before his so-called superiors, such as his father, grandfather, and elder brother, his amiable behavior with his so-called wives, friends, and contemporaries, his behavior as a child before his mother, Yashoda, and his naughty dealings with his young girlfriend cannot bewilder a pure devotee like Uddhav. Others who are not devotees are bewildered by such behavior of the Lord, who acted just like a human being. This bewilderment is explained by the Lord himself in Bhagavad Gita as follows. अब अब जानन्ति माम मुधा मानु मानुसिम तनुम असृतम परम परन भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम. Persons with poor fund of knowledge belittle the personality of Godhead Lord Krishna, not knowing his exalted position as the Lord of everything. In Bhagavad Gita, the Lord has explained his position clearly, but the demonic atheist student squeeze out an interpretation to suit his own purpose and mislead unfortunate followers into the same mentality. Such unfortunate person may pick up some slogans from the great book of knowledge, but are unable to estimate the Lord as the supreme personality of Godhead. Pure devotee like Uddhav, however, are never misled
by such atheistic opportunities. हम्म। लोग जो है ना, वो अपनी कम समझ की वजह से मतलब तरह तरह के इंटरप्रिटेशन बनाते रहते हैं। जी। और डिवोटी जो है वो दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हम्म। हम्म। अब- और क्या, नहीं अभी एक और है शायद। जी। अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांस या पायद प्य साध्वी लेभे गतिम धात्र युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ओहो बकी य स्तन कालकूटम जिघाम स्या पाय यद प्य साध्वी लेभे गतिम धात्रयो चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। Hmm. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a she-demon Putna? Although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. हम्म। Here हम्म। is an example of the extreme mercy of the Lord, even हाँ। to his enemy. It हाँ। is, क्योंकि क्या नाम है, उसने उसने उनको मदर की तरह से सर्व करने की कोशिश की ना लॉर्ड को। तब जी, मतलब ओनली क्या नाम है टू हर, बिकॉज केम, मतलब कि चाहे फेक तरीके से भी। हम्म, ऐसे जी, ही जामिल की स्टोरी है कि हम्म, लास्ट में उसने नारायण नारायण अपने लड़के को ही बुला रहा था, हम्म, लेकिन चूंकि उसने भगवान का नाम लिया ना, तो फिर विष्णु दूत आ गए उसको बचाने के। जी। लेकिन ये Here पूतना का तो एग्जाम्पल बहुत ही एग्जॉल्टेड। हाँ, हाँ। जी, जी. Here is an example of extreme mercy of Lord even to his enemy. It is said that a nobleman accepts the good qualities of a person of doubtful character, just as one accepts nectar from stalk of poison. In his babyhood, he was administered deadly poison by Putna, a she woman who tried to kill the wonderful baby. And because she was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of a baby, was no one less than the same supreme personality of Godhead. His value as the Supreme Lord did not diminish upon his becoming a baby to please his devotee Yashoda. The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it does not make the slightest difference. He is always the same Supreme, a living creature. However powerful he may become by dint of severe penance, can never become equal to the Supreme Lord. Lord Krishna accepted the motherhood of Putna because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. The Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest reward. That is the standard of his character. Therefore, who but the Lord can be the ultimate shelter. हम्म। हम्म। जी. यहाँ पर जो है ना, मतलब यही बताया है भाई कि हम्म, भगवान की कितनी बड़ी ये सब कृपाएं हैं। जी, बिल्कुल. ये लास्ट में एक पढ़ लेते हैं, क्या नाम है, जी. लेकिन एक कृपा है यार। मन्ने मन्ने सुरान हम्म। भागवताम स्त्रियधीशे हम्म। सर्ण रंभ मार्ग मार्ग भिनिष्ट चित्तान ये सुयंगे चक्षत ताक्षर्य पुत्र मन से सुना भा युधमा पंतनम. मन्ये सुतां भागवतां स्त्रयधीशे सरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षत ताक्षर्य पुत्रम से नुसुना भायु धमा पतंतम। जी. I consider the demon who are inimical toward the Lord to be more than the devotee because while fighting with the Lord, absorbed in the thought of enmity, they are able to see the Lord carried on shoulder of
Garun, the son of Tarkashya, Kashyap, and carrying the wheel weapon in his hand. ये मैं नहीं समझ पाई। हाँ, तो ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, इसको परपोर्ट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जी, जी एक बार ट्रांसलेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। I consider the demon who are inimical towards the Lord to be more than devotees, because while fighting with the Lord, absorbed in the thought of enmity, they are able to see the Lord carried on the shoulder of Garun, the son of Tarkash, Tarkashya, Kashyap, and carrying the wheel weapon in his hand. हाँ, ये यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कर्म है कि वो जो असुर लोग जो हैं वो उनकी एनमिटी के चक्कर में वो जब लड़ रहे होते हैं उनसे भगवान से, तो उनको वो गरुड़ देवता गरुड़ जो है ना उनके ऊपर विष्णु नजर आते हैं, मतलब अच्छा, विद हिज क्या नाम है, मतलब वो क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र। ओके, तो वो ये देख लेते हैं, तो इसलिए उनका क्या नाम है कल्याण हो जाता है उनको। दे सी देमसेल्फ बीइंग किल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड ऑन द ओके, ऑन द गरुड़ के ऊपर बैठे हुए। हाँ। जी। The Asuras who fought against the Lord face to face got salvation due to their being killed by the Lord. This salvation of the demon is not due to their being devotees of the Lord. It is because the Lord's causeless mercy. ये important है. It is because of Lord's causeless mercy. हाँ, ही इज एब्सोल्यूट। जी, anyone who is slightly in touch with the Lord somehow or other is greatly benefited even to the point of salvation due to the excellence of the Lord. He is so kind that he awards salvation even to his enemies because they come into contact with him and are indirectly absorbed in him by the inimical thoughts. Actually, the demons can never be equal to the pure devotees, but Uddhava was thinking in that way because of his feeling of separation. He हाँ, ये बात है। he हाँ, हाँ, वो हम्म, बेचारा इतना परेशान था, उसने कहा यार मुझसे तो डेमन ही अच्छे हैं। हाँ, जी, he was thinking that at the last stage of his life he might not be able to see the Lord face to face as did the demons. अच्छा, हम्म। the fact is that devotees who are always engaged in the devotional service of the Lord in transcendental love are rewarded many hundreds and thousands of times more than the demons by being elevated to the spiritual planets, where they remain with the Lord in eternal blissful existence. The demon and impersonalists are awarded the facility of merging in the Brahmajyoti effulgence of the Lord, whereas the devotees are admitted into the spiritual planet. For comparison, one can just imagine the difference between floating in space and residing in one of the planets in the sky. यहाँ पर जो है ना, ये आप समझ लो क्रम The ब्रह्म ज्योति में क्या pleasure, होता है, आप घूम जी, रहे होते हो, यू आर जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन जी, वॉइड। जी. The pleasure of the living entities on the planet is greater than that of those who have nobody and who नो merge बॉडी, वो हैव नो बॉडी, मतलब उनके वो ब्रह्म nobody. ज्योति में तो दे हैव नो बॉडी। जी, एक मिनट इस सेंटेंस फिर से पढ़ लेते हैं। द प्लेजर ऑफ द लिविंग एंटिटीज ऑन द प्लैनेट्स इज ग्रेटर देन दोज ऑफ दैट ऑफ दोज हु हैव नो बॉडी and who merge with the molecules of the sun's rays. The impersonalists, therefore, are no more favored than the enemies of the Lord. Rather, they are both on the same level of spiritual salvation. इम्पर्सनलिस्ट और जो असुर है ना, जो भगवान के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जी, उनका इक्वल हाल जी, है ना। जी, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर मेन जी, चीज ये है कि कहीं लोगों को ये जो मतलब जो भक्ति के रास्ते पे है, उनको ये ना हो जाए कि भगवान के बारे में बुरा ही सोचते रहो 24/7, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम्म, मतलब बुरा सोचने से भी कुछ होने वाला है नहीं। जी, हाँ, कार्यक्रम फिर क्रम में दूसरे तरीके से हो जाएगा। हम्म, असुर और एथीस्ट तो यही कर ही रहे हैं ना, जी, मोटी वो तो अगेंस्ट में ही सोच रहे हैं ना ऑल द टाइम। जी, जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। जैसे इन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति है भगवान की भक्ति कर रहा है तब भगवान को प्राप्त कर रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं
जो शत्रुता से प्राप्त कर रहे हैं। तो या पर्सनलिस्ट जो है वो भी एक तरह के शत्रु। लेकिन जो प्रोसेस है, तो हम्म, जो लोग भगवान को लाइक नहीं कर रहे हैं, उनका वो रास्ता पूरा टफनेस से फुल है, और जो भक्ति में है वो शुरू से ही भगवान की भक्ति में मगन है। तो आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति 60 ईयर्स भी ये कर रहा है, तो जो भक्त है उसका प्रेम में समय जा रहा है, और जो भक्त नहीं है उसका ईर्ष्या द्वेष में समय जा रहा है। और हाँ फिर तो अल्टीमेट यस रिजल्ट भी भगवान की जो भक्ति कर रहा है उसका रिजल्ट ही दूसरा होगा। हाँ यस बाकी का तो क्या नाम है, मतलब वो तो फिर बाकी का तो होगा ही ना। एक्शन रिएक्शन में आपको हिसाब किताब आपका होता रहेगा हम्म। कि कर्म है, मतलब आप अपने कर्म कर्म फल आपके खाते में जाता रहेगा। और जब आप हाँ। होगी तो उसी जो जो आपने कंसेप्शन बॉडी का डेवलप किया है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपको दूसरी बॉडी अवॉर्ड हो जाएगी। जी जी है जी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है हम्म, कि जैसे हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं, हम्म, तो उस समय भी जो लोग रहे होंगे, उनके समय में भी तो लिटरेचर अवेलेबल रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो हाँ लोग भगवान से ईर्ष्या कर रहे होंगे, उन्होंने भी तो अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सब पढ़ा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने ऊपर काम करने की कोशिश नहीं की। वो कहाँ गए कर्म है, उन्होंने मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मतलब किस मेरा टाइम, कहने। कौन से टाइम में, जैसे लेट अस टॉक अबाउट 5,000 साल पहले, ठीक है ना। जी। तो हम्म। भागवतम वगैरह सब 5,000 साल बाद, मतलब लॉर्ड कृष्णा के जाने के बाद में लिखी गई है। अच्छा। हाँ, भागवतम तो उसके बाद में हम्म। लिखी गई है। हम्म। वेदास वगैरह एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या जी। नाम है, क्या है ना, वो जो भगवत गीता का तो ज्ञान लुप्त ही हो गया था ना, तभी तो भगवान ने आकर के दिया ना उसको। परंपरा सिस्टम वाज लॉस्ट। जी। हाँ वो लोग तो सारे एथीस्ट हो ही चुके हैं, तभी तो भगवान को आना पड़ा ना। हाँ, बिल्कुल। भाई जब भगवान ने आकर के तभी तो भगवत गीता का ज्ञान दिया है ना, बिकॉज अर्जुन को समझाया ना उन्होंने, ये 4th चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, हाँ। कि मुझे मतलब ये जो है ना परंपरा सिस्टम वाज समहाउ लॉस्ट। हम्म। वो पहले राजा मतलब उनको दी थी ना सूर्यवंशी राजाओं को, लेकिन जी। वो तब फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम मेरे दोस्त हो और डिवोटी हो, हम्म। मेरे सखा हो और डिवोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हम्म। ये जी। है। हम्म। ठीक है। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आज शाम को तो भगवत गीता की क्लास है। जी। जी। ठीक है। जी।